एरिया में मीटिंग्स रहेंगे, इसलिए आप सबको वापस दोबारा याद दिलाते हैं कि आप उसमें जरूर जुड़ जाइए। And then from 15, 16 and 17, today, tomorrow and day after, there will be a fasting prayer at Kachi Basti at Sister Esama's house. और बहन एसामा आंटी उनके घर में 15, 16 और 17 तारीख में फास्टिंग प्रेयर होने वाला है जो कच्ची बस्ती में है। So those who have time, please go and be part of that fasting और prayer. उस उपवास प्रार्थना में जो शरीक होना चाहते हैं आप जरूर जा सकते हैं। Thursday, 19th of this month, that is this coming Thursday, is the Haryali Amavasya. Mela is going to happen, and we are going to distribute Bibles, New Testament in the city. और ये आने वाली 19 तारीख को हरियाली अमावस है और हम जानते हैं लाखों की तादाद में लोग भीड़ शहर में इकट्ठा होते हैं और बहुत ही अच्छा एक मौका बनता है लोगों को नए नियम देने का। Turn your heads towards that Bibles that are sitting up there. अपने पीछे उन ऊपर कितने बाइबल्स पड़े हुए हैं आप देखिए। Thousands of Bibles are there. हजारों बाइबल वहाँ यहाँ पर है और वहाँ पीछे भी कैंपस में भी हैं। Now these are all to be distributed to people who doesn't know the word of God. ये सब खाली कर देना है ऊपर से और लोगों तक पहुँचाना है। And please contact Brother Reggie Joseph before Thursday. Brother Reggie, are you here? भाई रेजी जोसेफ, आप उनसे संपर्क कीजिए। आप हैं यहाँ पर? Or somebody else? नहीं। No. Maybe Secretary Saab or Alex Engel. Would you please stand up so that people can? आप इनको देख लीजिए और इनसे संपर्क कीजिए, ये भी आपको आगे की जानकारी दे सकते हैं। So we are planning to do that, but before that, doing that, we need to pray, isn't it? हम बांटेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले कलीसिया को प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना करें कि ये वचन की बाढ़ शहर में चले जाए। Amen. Amen. So take it into your personal prayers, so that God will do His work. व्यक्तिगत रूप से भी आप प्रार्थना में याद रखिए कि बाइबल यहाँ लोगों के हाथों तक पहुँचे। Now we are going into the Word of God. हम प्रभु के वचन से देखने जा रहे हैं। God has put something in my heart to share with you this morning. कुछ आपके साथ बांटने के लिए परमेश्वर ने मेरे दिल में कुछ डाला है। How many of you have Chetak Circle? Have you been to Chetak Circle? चेटक सर्कल कभी आपने देखा या पहुंचे वहां अपना कदम All those who रखा? have gone through Chetak Circle, raise your hands. जिन्होंने चेटक सर्कल में कभी वहां से होकर गुजरे हाथ उठाइए। I know that every one of you might have gone through that place. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई यहाँ ना देखा हो, सब गए हैं। You know, we call it a circle. हम उसे सर्कल बोलते हैं ना, एक Have गोलाकार you में है। ever, done a gliding or a, what do you call? Gliding. Have you ever done a gliding? ग्लाइडिंग कभी किया है? Or jumping from a parachute? पैराशूट पकड़कर हवाई जहाज से नीचे छलांग लगाया है? एक जन है, दो जन है? Yeah. Look at this. Well, we have some special people here. कुछ खास लोग हैं हमारे बीच में, पहचानिए। पैराशूट लेकर नीचे उतरे हैं हवाई जहाज से। I'm going to preach on these two things this morning. आज पैराशूट और ग्लाइडर इन दोनों के विषय में आज जरूर मैं संदेश दूंगा। Living as a roundabout, living as a circle, or living under the wings. या तो आप एक सर्कल में रहिए या फिर आप पंखों के साथ में उड़िए। Hallelujah. हालेलुया। Which one do you like? आप कौन सा करना चाहेंगे? एक सर्कल में घूमना चाहते हैं गोल गोल, या फिर पंखों के साथ मतलब आजादी से उड़ना चाहेंगे? Hallelujah. हालेलुया। Well, हम उड़ना पसंद करेंगे। That's exactly God has put in my heart to preach this वही morning. बात परमेश्वर ने मेरे दिल में डाली है। We call it circle. हम उसे सर्कल कहते हैं, Chetak Circle. चेटक सर्कल But कहते if you हैं। go to England and if you ask Janet ma'am, she would say, in England they use the term roundabout. लेकिन आप इंग्लैंड में जाएंगे, जैनेट मैडम से पूछेंगे तो वो कहेंगे राउंड अबाउट। There, the traffic is controlled by setting up, roundabout, so that people know how to move in a roundabout. और वहाँ पर ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है, राउंड अबाउट है और लोगों को मालूम है कि कैसे कहाँ से उन्हें घूम के जाना है। When you drive a scooter or a car, you know that when the signal red comes, you stop. आपको मालूम है स्कूटर चलाते हैं, रेड सिग्नल आता है तो आप गाड़ी रोकते हैं। So the roundabout was formed, many years ago before even the signal system was in place. यहाँ तक कि सिग्नल सिस्टम आया नहीं था, उससे पहले ये राउंड अबाउट सिस्टम जारी हो चुका था। So whoever goes to a circle or a roundabout, there is a rule.
और जो कोई भी उस राउंड अबाउट की ओर बढ़ता है वहां तक जाने का एक रास्ता भी होता है। So when you come to the circle, जैसे ही आप उस राउंड अबाउट के पास पहुंचते if हैं, you see a vehicle coming from your right, आप देखेंगे एक गाड़ी दाईं ओर से आपकी ओर आ रहा है, you have to give that vehicle the priority to go. तो आपको सबसे पहले उसे पहला स्थान देना होगा कि वो चला जाए। And if there is no vehicle that comes from that right side, then you can go. अगर दाईं ओर से कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो फिर आप आगे जा सकते हैं। And then when you go, फिर आप जब जाएंगे there will be other vehicles waiting from the other side. But if they see that from a vehicle that is coming on the right side, then they will let you go. अगर फिर वहां पर कुछ और गाड़ियां इंतजार कर रही होंगी, अगर वो देखेंगे कि अपनी दाईं ओर से गाड़ी आ रही है तो वो रुक जाएंगे और आपको जाने देंगे। The traffic is controlled by the behavior of the other. और जो ट्रैफिक है वो एक दूसरे के मतलब व्यवहार के द्वारा नियंत्रित है So या everybody परिचालित will है। know how the right side person behaves. और आपको मालूम होगा कि आपका दाईं ओर से आने वाला व्यक्ति कैसे आपसे व्यवहार If he करेगा। comes very fast, अगर वो बहुत तेजी से आता है you better wait. तो फिर आपको तो रुक ही जाना है। If he is coming from a far place or from a slow way, in a slow way, अगर वो धीरे धीरे दूर से आ रहा है then you can just jump in and take your route. तो आप क्या करेंगे, आप तेजी से चले जाएंगे। So that is the principle of roundabout or a circle. इसलिए सर्कल के ऊपर से जो भी गति करते हैं गाड़ी लेकर, उनको एक नियम में ही जाना पड़ता है। In India we don't do that. हम इंडिया में नहीं करते हैं You know, we push our nose as early as possible. कोई आ रहा है हम ध्यान नहीं देंगे, हम भी उससे भिड़ जाएंगे। You know, they have to stop, we push our nose. हमें उनको रोक देंगे पर हम खुद चले But जाएंगे। we are talking about systematic traffic rules. लेकिन हम सिस्टमैटिक ट्रैफिक के कायदे कानून की बात कर रहे But when you're traveling on a sky, लेकिन अगर in आप the sky, आसमान में सफर कर रहे हैं or when you glide, और जब ग्लाइड में आप उड़ते हैं, you know, there are not so much tight rules to control where to go. वहां ट्रैफिक रूल, लाल बत्ती ये सब नहीं होता है कि आपको रोके या कहीं पर जाने की परमिशन दे। Mostly it is the glider, the thing, the machine that is above you on which you are holding, and the wind that guides you will take you to the places where you हवा want to की go. रफ्तार, उसकी गति और आपके ग्लाइड के दोनों तरफ के विंग्स और आप जो उसको पकड़ के हैं, आपको ही सब निर्णय करना पड़ता है। Many of us live like a roundabout or a circle life. हमें से बहुत सारे लोग उस राउंड अबाउट यानी कि सर्कल जिंदगी जीते हैं। You know, you go round and round, and every time you remember, oh, I have been here, oh, I was here, oh, I was here before. You know, you just think in the same way. उस गोलाकार को आप अतिक्रमण मतलब परिक्रमण करते हुए आपको हमेशा याद आएगा कि मैं यहाँ भी गया था, वहां भी था, यहाँ भी था, वो जगह, वो निशान, वो घर आपको हमेशा याद But आएंगे। those who are gliding, they will always see new places. लेकिन जो ग्लाइडिंग आसमान में उड़ते हैं पंखों के सहारे, वो हमेशा नई चीजों को देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now that is what God wants us to be. वही परमेश्वर भी हमसे You know, I चाहते हैं। just want to take a broader perspective of how God works. परमेश्वर कैसे काम करते हैं उसका एक बहुत ऊंची आपको एक I मतलब want नजरिया to दूंगा। turn your attention to the book of Judges and Ruth. आप न्यायों की पुस्तक में आइए। Judges and Ruth. न्यायों की पुस्तक और रूथ। You know, as I mentioned earlier, in the Old Testament, this is one book. Judges and Ruth are considered as one book. पुराने नियम में, यहूदियों के पुराने नियम में न्यायों की पुस्तक और रूथ इनको एक ही किताब माना जाता था। And it is part of the prophetic literature. और ये भी भविष्यवाणी की साहित्य के अंदर इसे रखा जाता था। In the Old Testament, according to the Hebrew or the Jewish people, you know, Bible is divided into 3 categories. और यहूदियों के पुराने नियम 3 भागों में बटा हुआ The है। first 5 books are considered as Torah or law. और जो प्रथम 5 पुस्तकें हैं मूसा के लिखे, उसे तोरा माना जाता था या व्यवस्था मानी जाती थी। Then there are books which are like Psalms, Songs of Solomon, Proverbs, those kind of poetical literature. This is known as writings. और कविता के अंदर जो हम जानते हैं भजन संहिता है, श्रेष्ठ गीत है और नीति वचन है, ये सब राइटिंग्स के मतलब श्रृंखला में आते हैं। And then we have a third group of literature. अब एक तीसरा एक वर्ग भी है, They are called as prophetic literature. वो भविष्यवाणी की साहित्य है। But we consider only Isaiah, Jeremiah, Ezekiel as prophets. लेकिन हम तो सोचते हैं बस यशाया है, जेरेमिया है या फिर यिजकियल है, यही लोग सिर्फ But भविष्यवक्ता for हैं। the Jewish people, you know, it also includes Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles,
Chronicles and so on. लेकिन यहूदी तो सारे इतिहास के पुस्तक, चाहे वो न्यायों की पुस्तक, फिर रूथ, फिर पहला शामुएल, दूसरा शामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, ये सब भी उन्होंने जोड़ रखा था भविष्यवाणी की साहित्य की श्रृंखला में। You know, these are prophetic histories. ये सब भविष्यवाणी के भविष्य वक्ताओं के इतिहास का समय है। It is a history about what God is doing among His people. ये उस इतिहास को बताता है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के बीच में क्या क्या किया है। God's dealing with His people. परमेश्वर अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता You know, है। that is why it is called as prophetic history. इसलिए उसे भविष्यवाणी की इतिहास पुस्तिका कहा And जाता if है। we write histories, अगर आप इतिहास लिखें, there are 4 ways in writing history. चार तरीके हैं। You know, I'm going to teach you some history, कुछ historical methods. इतिहास सिखाऊंगा आपको। I hope you're all, watching carefully, listening carefully. आप ध्यान से सुन रहे हैं। You know, there are histories being written on personalities, individuals. व्यक्तियों के जीवन के आधार पर भी इतिहास लिखा गया है। That means detailed analysis of a king who ruled the kingdom of Mewar. हो मान लीजिए मेवाड़ में एक राजा जिन्होंने इतने साल से लेकर इतने साल तक शासन किया, उनका इतिहास। It will talk about his children, his wives, his possessions, his war, and all those things. उनके पत्नी, उनके बच्चे, रिश्तेदार, उनका राज्य, साम्राज्य, और उनके अच्छे दिन, बुरे दिन, उनके युद्ध, सब कुछ विजय, सब कुछ लिखा हुआ। A second way of doing history is to write the story of people. और दूसरा एक तरीका है इतिहास लिखने का, लोगों की कहानियों को इकट्ठा करना। For example, the Romans, the history about the Roman people, the history about the Britishers, the history about the Americans, the people, the rise and fall of various people groups. लोगों का समाज या उनकी जाति, उनके बारे में इतिहास, मान लीजिए अमेरिकी लोगों का इतिहास या रोम साम्राज्य के लोगों का इतिहास या फिर ब्रिटिश लोगों का इतिहास, भारतीय लोगों का इतिहास। And there is a third way of writing history. तीसरा एक तरीका है इतिहास लिखने They का। will look at the patterns that was existing and then people write history about it. Patterns. और कुछ ऐसे तरीके थे जीने के, जीवन शैली के तरीके, उनके बारे में इतिहास लिखा जाता For है। example, the history of industrial revolution. मान लीजिए जो क्या बोलते, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो क्रांति आई इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उसका इतिहास। Or some agrarian revolution. mean agriculture, farming, या फिर development. कृषि, उसके बारे में एक इतिहास ऐसे काम का भी। IT revolution with या फिर electronics and computers. इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के अंदर कैसे क्रांति आई और इतने सालों के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, उसका इतिहास। And the fourth kind of history is the history that study the purposes. और चौथा जो तरीका है इतिहास लिखने का, जिसमें उद्देश्य, उसके ऊपर शोध की जाती है और उसका इतिहास निकाला जाता है। Scholars would say that Marxist way of writing history, how the Marxism become the left side of the history, the right side of the history. और फिर जो विद्वान लोग हैं वो इस प्रकार कहते हैं कि मार्क्सिस्ट इतिहास, उनके दृष्टिकोण से कैसे इतिहास लिखा गया। But this morning we are trying to look at prophetic history, which is very similar to history with a purpose. लेकिन हम भविष्य वक्ताओं के इतिहास के विषय में देख रहे हैं, उनके लेखन के इतिहास को देख रहे हैं और उनके उद्देश्य को आज हम So in जानेंगे। the prophetic history, what happens is that, God is in full control. He will take care of His people and take them to the right destiny. और भविष्य वक्ताओं के इतिहास के अंदर परमेश्वर सब बातों का नियंत्रण करते हैं और लोगों को एक समय से दूसरे समय की ओर ले जाते हैं। So the story of God's people is studied carefully or presented carefully so that we will know whether they were on the right track or on the wrong track. बड़े ही सोच समझकर और बड़े ध्यान से परमेश्वर के लोगों के जीवन और उद्देश्य को अच्छी तरह से लिखा गया है, ताकि जो कोई भी उसे बाद में पढ़े उसे नसीहत मिले, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी जानकारी मिले। Hallelujah. हालेलुया। When I say hallelujah, I hope that you are understanding what I'm saying. हालेलुया बोलता हूं तो आप समझिए, तो हाथ हिलाइए कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। Hallelujah. Then again, when you study history as a purpose, जब हम इतिहास को उद्देश्य के रूप में आप अध्ययन करेंगे, there are two things you need to remember. दो बातों को याद रखना है। When you study the purpose, you will understand that some of the history with purpose go in circles. और कुछ इतिहास के विवरण जब आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा ये इतिहास तो गोल गोल घूमती है। They just go around, they get up early in the morning, brush their teeth, eat the breakfast, go to the work and come back
back from work, eat dinner, go to sleep, next morning get up and do the same thing. ये गोलाकार के रूप में जैसे हमारा प्रतिदिन का दिनचर्या जिंदगी होता है, सुबह उठे, ब्रश किया, नहाया धोया, तैयार हुआ, नाश्ता किया और ऑफिस चले गए, दिन भर काम किया, थक कर शाम को बाजार से खरीदारी करके घर लौटे, फिर खाना खाया, सो गए, फिर अगले दिन सुबह फिर वही जिंदगी. It's a cycle. तो ये एक साइकिल के जैसा ही है, गोल गोल घूमती है. Your history can be made of cycles and circles of events that are working on your life. आपकी जिंदगी का इतिहास भी कुछ दिनचर्या का एक जैसे काम करने का जिंदगी हो सकती है, कहानी हो सकती है, जिसमें प्रतिदिन आप एक जैसे ही जीते हैं, गोल गोल घूमते हैं. Put your whole year together and try to see, are you moving in circles or are you moving linear? आप अपना बीत गया जो वर्ष, उसे पूरी तरह से देखिए, आपने उसे गोल गोल जिया या सीधा जिया. We are looking at progressive nature in which God is placing His promises upon your life so that you can grow in the Lord in a serious way. हमारी जिंदगी का जो इतिहास परमेश्वर बना रहा है वो गोल गोल नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ है, जिसमें हम उन्नति करते हुए परिवर्तन पर परिवर्तन पाकर आगे बढ़ता हुआ है. Hallelujah. Hallelujah. That is why Jesus said that you need to move from glory to glory. इसीलिए यीशु कहा कि तुम महिमा से महिमा और आगे बढ़ोगे. Hallelujah. Hallelujah. Or Jesus didn't say that you go around in circles, and find my glory there. और आप लोग जानते ये क्या बोलते हैं, एनसीसी में हमको एक कमांड दी जाती थी, जैसे थे मतलब फिर वही घूमकर वहीं आ जाओ जहां पर से निकले थे. Okay, now let's go into the serious business. Okay, प्रभु के वचन पर आए. Now, if you study the book of Judges, अगर न्यायों की पुस्तक आप अध्ययन करें, the history is a history of circles. यहाँ भी जो इतिहास है लोगों के बारे में लिखा हुआ है वो गोलाकार में है, गोल गोल घूमना जैसा. But if you study the story of Ruth, it is a progressive history. लेकिन रूथ की जिंदगी का इतिहास आप पढ़ेंगे, उसको आप गोल गोल घूमते हुए नहीं, आगे बढ़ता हुआ ही पाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. That is what God is asking us this morning. वही परमेश्वर हमारे बारे में भी पूछ We रहा है. need to catch that heart of Ruth to build our lives so that we can move forward. हमें तो रूथ के दिल में जो चल रहा था उन बातों को पकड़ लेना है ताकि हमारी जिंदगी भी सीधा आगे उन्नति की ओर बढ़े. In the book of Judges, we learn that people of Israel were going in circles in 7 occasions. In 400 years, 7 occasions, they were going round and round, doing the same thing. 7 ऐसे तरीके मतलब 7 बातें वो कर रहे थे और 400 सालों के अंदर उनका जिंदगी, उनका इतिहास गोलाकार था, जैसे ही वो हर बार वही चीज किया कर रहे थे. 7 times in Judges, they will cry to God. Then God will come with deliverance, and when God delivers them, they will sin, and when they sin, they will have occupation or attack by the enemies. 7 बार ऐसा हुआ है न्यायों की पुस्तक के अंदर परमेश्वर के लोग इस्राएलियों के जीवन में कि वो 7 बार उन्होंने मतलब परमेश्वर से छुटकारा मांगा, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया, मुसीबतों से बचाया, वे वापस पाप में गिर गए और फिर वो रोने लगे और फिर परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया. ऐसे 7 बार हुआ. 7 times in 400 years they are going round and round and round. They pray, God hears a prayer, then they again, violate or sin, and then they are under the attack of the enemy, and then they cry again. 400 सालों के अंदर 7 बार इन परमेश्वर के लोगों ने ऐसा ही किया कि वो जब पाप किया, उसके बाद मुसीबत में गिरे, दुश्मनों ने हमला किया, फिर ये रोने लगे, पश्चाताप किया, फिर परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया. जब छुटकारा मिल गया तो ये वापस फिर पाप में चले गए और फिर वो मुसीबत में गिरे, और ऐसा उनके साथ 400 सालों के अंदर 7 बार हुआ. I don't know how is your life this morning. आपके जीवन के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम. Are you still feeling the same? Every year I do the same thing. क्या आपको ऐसा लगता है हर साल मेरी जिंदगी पिछले साल जैसी ही है? I'm just going round and round. बस गोल गोल ही घूम रहा हूं मैं. I cannot see the light. मुझे वो रोशनी नहीं दिख रही. I cannot get out of this circle. ये चक्रव्यूह जैसा है, उसी के अंदर मैं घूम रहा हूं, उससे बाहर निकल ही नहीं रहा हूं. If that is you this morning, there is a word for you. अगर ऐसे जीवन की परिस्थिति से होकर आप गुजर रहे हैं तो आप ही के लिए आज प्रभु का एक वचन है. Hallelujah. हालेलुया. Ruth's life is completely different. रूथ की जिंदगी पूरी तरह से अलग है.
But one thing before we go into Ruth's life, I want you to be aware of the dangers of going in circles. लेकिन रूथ की जिंदगी में जाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि गोल गोल अपनी जिंदगी को घुमाने से उसमें क्या खतरे हमें मिल सकते You know हैं। what kept people of God to go round and round and round? वही चीजें बार बार दोबारा दोहराते रहे, गोल गोल घूमते रहे, आखिर ऐसा क्या कारण था जिसके वजह से वो ऐसा कर रहे So I थे? just want to mention about three major things. 3 मुख्य कारण थे। And as I told you, this is we call this book as Book of Judges. हम इसे कौन सा पुस्तक? न्यायों का पुस्तक कहते हैं। The heading is a little bit it gives a misinformation. ये जो शीर्षक है इस पुस्तक का हमें कुछ गलत खबर देता है। If you consider judge, we see him as sitting in the court of law and dictating, what is right and wrong. न्यायी यानी कि जज, मतलब हम सोचते हैं जैसे कोई अदालत है और बड़े कुर्सी पर जज साहब बैठे हुए हैं और लोगों की जिंदगी का फैसला कर रहे हैं। But here, these people who are known as judges are not sitting and making judgments, but rather going around and fighting and finding answer for God's people. लेकिन ये जो न्यायी है ये भी एक जगह बैठकर फैसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो जाकर लोगों की ओर से दुश्मनों से लड़ रहे हैं और लोगों को इंसाफ दिला रहे They हैं। were actually acting on behalf of God. वो परमेश्वर की ओर से काम कर रहे थे। In the book of Judges, there is only one judge, and that is the name, the noun form of judge is used only for God. और Only for God. सिर्फ परमेश्वर हैं जिनको न्याय कहा गया है। And all the others are not judges, but they were actually doing things for God under the power of the Holy Spirit. लेकिन बाकी जितने भी प्रमुख अगुओं के नाम इस न्यायों की पुस्तक में लिखे गए हैं वो परमेश्वर की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए वो लोगों को इंसाफ दिला रहे थे। And if you study some of these people, there were 14 judges in the book of Judges which ruled the people of Israel. न्यायों की पुस्तक में 14 न्यायों के बारे में लिखा हुआ है। And if you study their story, they are not big people when they were called by God. जब परमेश्वर के द्वारा ये लोग बुला गए तो बहुत ही ख्यातिनाम लोग नहीं थे, महान लोग नहीं थे। Gideon was the most fearful man, and not only that, he always asked a sign from God. एक न्यायी था जिसका नाम गिदियोन था, वो बहुत ही मतलब डरपोक आदमी था और हमेशा परमेश्वर से चिन्ह मांगता था। And Samson, his life, his background, he was a very weak man. आप समसोन उसके जिंदगी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बड़ा ही कमजोर मनुष्य था। But what God did was to pick up these weak people, and God used them powerfully to troubleshoot God's people. परमेश्वर के लोगों को मुश्किल से बाहर निकालने के लिए इन कमजोर लोगों को परमेश्वर ने चुना और उनका उपयोग किया। Hallelujah. Hallelujah. Even today, God can use us. Even if you are the most weakest person here, God can pick you up and fill with your Holy Spirit, give you amazing strength to do God's mighty thing. आप कमजोर हो सकते हैं आज, लेकिन परमेश्वर वो नहीं देख रहा है, वो तो आपको बस चुनेगा, अपनी आत्मा से भरेगा और अपनी शक्ति देकर आपसे अपना काम करवाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Now these judges were trying to help the people of God. ये न्यायी जितने थे 14, ये परमेश्वर के लोगों की मदद कर रहे But the थे, people of God, not always moving or listening to what God is saying. लेकिन परमेश्वर के लोग जब भी परमेश्वर उन्हें कुछ कहते थे तो वो सुना नहीं करते And थे। because of that, as I told you, they were going in circles. इसीलिए वे बार बार पाप में गिरते थे और अपनी उनकी जिंदगी एक गोलाकार में परिक्रमण करती The थी। first danger that they did was they made compromises. पहली जो परेशानी थी कि उन्होंने समझौता किया। They made compromise. उन्होंने समझौता किया। What is compromise? समझौता करना क्या होता One है? thing they did was they allowed the enemies to live in the most vulnerable valleys in the city, in the country. और देश के जो सबसे जो बुरे जो तराइयां थे उन जगहों पर दुश्मनों को रहने दिया। When God sent them to the land of Canaan, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को कनान देश भेजा, God had a purpose. परमेश्वर को एक उद्देश्य था। Not only sending them to the promised land केवल वायदे के देश उस कनान में ही भेजना नहीं and था give them a place, और उन्हें एक रहने का स्थान देना, but there is also another purpose of God bringing judgment upon the people who are not according to His plans. लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर का ये भी उद्देश्य था कि तुम लोग जब वायदे के
देश में जाओगे तो ऐसा हो कि जो बाकी जो मुझे नहीं मानते हैं उनके ऊपर न्याय आए और वो निकल जाएं। In Deuteronomy, in one place, it is written that God was holding people of God in Egypt until the wickedness of the Amorites will be complete. और यहाँ तक कि व्यवस्था विवरण में एक जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को तब तक मिस्र में मतलब रोक के रखा जब तक अमोरियों का पाप मतलब पाप का गड़ा भर नहीं गया So था। God was trying to use the people of God as an instrument of judgment against the wicked people. इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना ताकि उनके द्वारा जो बुरे और अपराधी लोग थे उन्हें न्याय कर सके, उनको दंड दे सके। That's why God asked them to destroy every enemy in the land. इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें कहा प्रतिज्ञा के देश में जाने के बाद वहां जितने भी शत्रु हैं उन्हें तुम खदेड़ देना, बाहर निकाल देना। But when they conquered the land, लेकिन जब परमेश्वर के लोगों ने उस पूरे जमीन के ऊपर विजय पाई, they were focusing on the mountains and the hills. वे हमेशा पहाड़ों की ओर ध्यान लगाए रहते थे। They went to the mountains and hills and conquered those places. पहाड़ और पर्वत जितनी भी श्रृंखलाएं थे उन्हें जाकर जीत लिया। But the valleys, they allowed the enemies to stay. लेकिन पहाड़ी के नीचे जो तराई था वहां पर दुश्मनों को रहने के लिए जगह दे दिया। That was a very bad decision. और वो एक बहुत ही गलत निर्णय They था। were disobeying God. वे परमेश्वर को नहीं मान रहे You थे। know, they were allowing the valley to be a place for the enemy to work. वो हमेशा उन्होंने तराई को वो स्थान बनाया जहां दुश्मन रहे। So when there is a fighting that comes, when there is an enemy that comes, you know, it is very difficult for people to communicate between the hills because in the valley there is an enemy. क्योंकि पहाड़ियों के ऊपर अब परमेश्वर के लोग रहने लगे थे, इसलिए जब युद्ध का समय आता था तो बहुत मुश्किल होता था कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक लोगों तक संदेश पहुंचाया जाए। The people of Israel failed because they allowed the enemy to live in the valley. और परमेश्वर के लोगों की पहली गलती उन्होंने दुश्मनों को तराई में रहने दिया। You know, for us, in our own lives, if you allow the valleys and the places where there are vulnerability, and if you allow the enemy to stay there, your life will be just roundabout. You will always go in circles. अगर आप दुश्मनों को अपने जीवन की तराई में रहने का मौका दे दोगे और फिर बाद में आप खुद फंस जाओगे और आगे बढ़ नहीं पाओगे तो आपकी जिंदगी भी उस सर्कल में घूमती रहेगी। My dear young men and women in this church, कलीसिया के जवान भाई बहन, there are many valleys in your life. आपकी जिंदगी में ऐसे कई तराई हैं। You better take control of your valleys. आपके अपने तराई पर आपका अपना कब्जा होने चाहिए। Otherwise, you will go around in circles. नहीं तो आपकी जिंदगी उस गोलाकार में घूमेगी। You know, you need to fight the battle. आपको युद्ध लड़ना ही है। You know, so this compromise that people of Israel has made came as a danger for their life. इसीलिए इजरायलियों ने समझौता किया और उनके जिंदगी में विपत्ति आ गई। Not only that, their compromise was also in terms of mixed marriages. और सिर्फ इतना ही नहीं, जो गैर यहूदी थे उनके साथ भी उन्होंने विवाह कर You know, लिया। that was a great temptation for the men of Israel. और उस इजराइल के पुरुषों के लिए हमेशा एक प्रलोभन था। As a result, the morality of God's people fell down. और इस कारण परमेश्वर के लोगों के अंदर जो नैतिकता और पवित्रता थी वो खत्म हो गई। As a result, idolatry came inside. इसलिए इस प्रकार के विवाह के द्वारा परमेश्वर को लोगों के अंदर मूर्ति पूजा आ गई। And that was one reason why they were going, you know, round and round. ये दूसरा वो कारण था जिस वजह से उनका इतिहास गोल गोल घूम रहा था। And the second major theme for going in terms of roundabout, और गोल गोल घूमने के पीछे दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है, their conduct, the way of life was always like a cycle. उन्होंने अपने जीवन का रहने का तरीका भी गोलाकार में ही रख दिया था। I mentioned this earlier. मैं इसे पहले भी कह चुका You know, हूँ। they will cry out to God, number one, पहले बात, परमेश्वर के सामने दुहाई देंगे, चिल्लाएंगे, and God will deliver some. परमेश्वर उन्हें आकर छुटकारा देंगे, And after the deliverance, they will start violating God's और laws. छुटकारा पाने के बाद वो फिर पाप में गिरेंगे। And they will, then again, they will be occupied by the enemies. उसके बाद शत्रु आकर उन्हें दबोच लेंगे And then they will cry again. और वो फिर परमेश्वर के सामने रोएंगे। You know, this is a very, not a progressive spiritual life. अगर देखा जाए ये आत्मिक जीवन कहीं आगे नहीं बढ़ रहा You है, know, बस गोल गोल घूम रहा है। if you are only
focusing your spiritual lives on the problems of your life, अगर आपके आत्मिक जीवन का केंद्र और दर्शन केवल आपकी जिंदगी की परेशानियां ही है, and only pray for the problem, और सिर्फ अपनी जिंदगी के परेशानियों से and ही लड़ना है, God will give a miracle, परमेश्वर एक चमत्कार करेंगे, and then you wait for the next problem, फिर आप दूसरे समस्या का इंतजार करेंगे, then you pray again. फिर आप प्रार्थना करेंगे, So that kind of cycle, always make you go round and round. फिर आपकी जिंदगी बस एक साइकिल के समान गोल गोल घूमेगी। आप जहां से निकले थे वहीं वापस आ जाएंगे। You are called into maturity. आपको तो परिपक्व होते आगे बढ़ना। Each problem will take you to the next level. हर समस्या आपको और ऊंचाई तक ले जाए। Each issues in life should place you in good relationship with God. हर वो जिंदगी में आने वाली समस्या आपको प्रभु के साथ एक बेहतर संबंध में आगे ले जाए। Next time when problems come, you will not wait for the problem, but you will have that confidence. My God has taken care of me in the past, and now I am confident, and I will trust in Him. तो अगली समस्या जब आएगी तो आप भयभीत नहीं होंगे, लेकिन आप मन ही मन विश्वास में प्रस्तुत होंगे कि और ये मानने के लिए कि जैसा मेरा पिछला समस्या हट गया प्रभु की दया से, ये आने वाला समस्या भी दूर हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Your faith will increase. आपका विश्वास बढ़ जाएगा। Your maturity in God will increase. परमेश्वर में आपकी जो परिपक्वता है और ऊपर आएगी। Your trust in God will increase. परमेश्वर पर जो भरोसा है आपका और ऊंचा हो जाएगा। You will move from one level to the other level. एक स्तर से आप हमेशा ऊंचाई की ओर ही And you आगे will never बढ़ेंगे। go in round and round. फिर आप गोल गोल नहीं घूमेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And the third major problem for the people of Israel was, परमेश्वर के लोगों की तीसरी समस्या ये थी, when they were doing idolatry, जब वो मूर्ति पूजा कर रहे थे। what is idolatry? क्या है मूर्ति पूजा? Means wrong belief. मतलब गलत विश्वास, wrong trust. गलत जगह पर भरोसा करना, Trusting in a wrong God. एक गलत देवता पर भरोसा And when you करना। have a wrong belief, जब आप गलत ही विश्वास लेकर you चल रहे will हैं, end up in wrong behavior. तो फिर आपसे गलत व्यवहार और स्वभाव निकलेगा। Right? Are you getting me? समझ रहे हैं आप? Wrong belief will lead to wrong behavior. गलत विश्वास गलत स्वभाव की ओर ले जाएगा। If you read the last chapters of the book of Judges, न्यायों की पुस्तक के अंतिम अध्यायों को पढ़ेंगे, you will find some two tragic incidents that are happening there. बहुत ही दो दुखांतिका वहां पर मिलेंगे। One is about the tribe of Dan. एक था दान की जो गोत्र था, They were based in north. वे उत्तर में बसे हुए थे। But what has happened to them? People began to move towards idolatry. और दान में रहने वाले लोग धीरे धीरे मूर्ति पूजा की ओर बढ़ रहे थे। And on the other side, on the south, the tribe of Benjamin was going down because of immorality. और दक्षिण में बिन्यामीनी गोत्र के जितने भी लोग थे वो पाप में बढ़ते जा रहे हैं, अनैतिकता में बढ़ रहे थे। So I'm not going to give the details of all those things. उनके बारे में सब कुछ नहीं अभी कहूंगा, But I want to try to say to you that book of Judges is a story of God's people going round and round 7 times, and still they are going round and round. और मैं कुल मिला के इतना कहूंगा, न्यायों की पुस्तक में आप 7 बार ऐसे देखेंगे कि परमेश्वर के लोग जहां से निकले थे वहीं मुड़कर आ जाते थे और अपनी जिंदगी में उनकी प्रगति कभी नहीं हुई, वो गोल गोल घूमते रहे। But this morning the good news is, लेकिन आज सुबह शुभ संदेश ये है, we have the good news of the book of Ruth. हमें रूथ की पुस्तक के रूप में एक शुभ संदेश। Hallelujah. हालेलुया। When people go round and round, जब लोग गोल गोल ही घूम रहे हैं, even the good people also will go round and round. कई बार अच्छे लोग भी गोल गोल घूम जाते हैं। Look at Ruth's family. लेकिन रूथ के परिवार को देखिए, they were also going round and round. वे भी गोल गोल ही घूम रहे थे। Ruth's father-in-law and Naomi and the sons, they were under a famine and they left Bethlehem and went down to the land of Moab. रूथ के सास ससुर और उनके 2 बेटे जब बेथलेहम में रहते थे, उस समय अकाल पड़ा तो उन्होंने परमेश्वर के देश को छोड़कर वो लोग मोआब देश में चले गए। They were not willing to listen what God is saying. परमेश्वर क्या कह रहा है सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं there is था। a famine in the land. जमीन पर आया है अकाल। And in the past when there is a famine, people always understood this is a judgment from God. इससे पहले जब कभी भी इस्राएल की जमीन पर अकाल आया था तो लोगों ने यही माना था ये परमेश्वर की ओर
ओर से दंड आया है। You know, one thing is very clear in the book, in the Bible is, बाइबल में एक बात स्पष्ट है, if God repeats anything again, अगर परमेश्वर कोई बात को दोबारा दोहरा रहे हैं, that means that people are not listening. इसका मतलब लोग परमेश्वर को सुन नहीं रहे हैं। Does it give a message to us? क्या हमसे ये बात कर रहा है? If God is saying again and again, you do that, that means that you are not changing. अगर परमेश्वर एक ही बात आपको बार बार कह रहा है, इसका मतलब आप अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। But if you are changing, लेकिन अगर आप खुद को बदल रहे हैं, God will bring the fresh dew from heaven and the mercies of God will be new every morning. ताजा स्वर्ग से ओस की बूंदें आपकी जिंदगी में आएगी, ताजा प्रभु की दया आपके जीवन में आएगी और नई बातें आपकी जिंदगी में वो भी अच्छी होंगी। Hallelujah. आमीन। God is a God of new creation. परमेश्वर नई सृष्टि का परमेश्वर He है। always want to create something new. वो हमारे लिए हमेशा कुछ नया हमेशा He करना is not चाहते a हैं। duplicator. वो कभी डुप्लीकेट नहीं He बनाता is है। not a person who repeats everything. वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो एक ही चीज को आपके जीवन में बार बार करता But रहे। He wants to bring something new for लेकिन you. वो कुछ तो नया आपकी जिंदगी में If लाना you चाहता है। listen to Him, He will bring something new right now in your life. सिर्फ आप अगर प्रभु की सुने और माने तो वो नई बातों को आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। That is exactly God wants in your life. वही आपकी जिंदगी से प्रभु चाहता है, Only if you listen. सिर्फ अगर आप उसकी माने। That is what is happening in the life of Ruth. वो रूत की जिंदगी में होता हुआ हम And देखेंगे। so Naomi and these other, daughter-in-laws are staying with them. अब पति के और नवमी और दो बहू साथ में रह रहे हैं। Now they don't have a way to go forward. अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। And then Naomi began to say that, oh, I heard some good news in Bethlehem. I want to go back. नवमी कहती है, मैं बेथलेहम के बारे में कुछ अच्छी बातें सुन रही हूँ, अब हमें लौट जाना And चाहिए। Orpah said, oh, I would like to stay back. औरपा कहती है, मैं रुक जाऊंगी। But Ruth says, I want to go where you want to go. रूत कहती है, मैं आपके साथ में जाऊंगी, जहां आप जाएंगे मैं वहां जाऊंगी। Hallelujah. हालेलुया। That is that willingness to return, willingness to turn back, willingness to come out of the circle. और ये तो एक निर्णय है कि आप वापस आना चाहते, एक निर्णय है कि आप गोलाकार घूमना नहीं चाहते। Hallelujah. Hallelujah. In chapter 1 itself, we see that, I think, where Ruth talks about, verses 15 onwards. 15 से आगे? 16. 16 पद। रूथ बोली, तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। Hallelujah. 4 times she is saying, I will, I will, I will, I will. 4 बार वो कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ। I will go. मैं जाऊंगी तेरे I साथ। will dwell. मैं वहां रहूंगी। I will die. मैं वहां मरूंगी। I will bury. मैं वहां पर गाड़ दी जाऊंगी। Hallelujah. मैं This is the sign of coming out of your circle. ये उस बात की निशानी है कि आप उस गोलाकार चक्रव्यूह से बाहर आ जाना चाहते हैं। Before God, you are going to say, God, I will do this. अगर आप परमेश्वर से कहेंगे, हाँ मैं ये करूंगी, And that decision need to come from you this morning. और वो निर्णय आप ही से आज आपके दिल से आना चाहिए। And when that happens, और ये जब होगा, the love of God will pour out. परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर उंडेल दी And जाएगी। Ruth is beginning to find favor of God and favor of God's people. अब रूथ अपने जिंदगी में जब उसने परमेश्वर को हाँ ही कह दिया है, तो परमेश्वर की दया और परमेश्वर के लोगों की दया अब वो पाने जा रही थी। Hallelujah. 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 When you go in circles, जब आप गोल गोल ही घूमेंगे, there is no favor. उसमें प्रभु की कोई दया नहीं है। It is only when you have your diesel or a petrol in the vehicle which will make you go round and round. बस आपके गाड़ी के अंदर जो थोड़ा सा डीजल या पेट्रोल है, वही बस आपकी मदद करेगी गोल गोल घूमने के लिए। But when you say, I am coming out of this, I will, then God's favor began to fall upon your life and things began to open for इस you. गोलाकार के रास्ते को जब आप छोड़ने के लिए तैयार होकर सीधा चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। Hallelujah. Hallelujah. A willingness to return. वो आप मतलब पीछे लौट आने के लिए एक तैयार दिल। And the second thing that we learned from the book of Ruth,
दूसरी बात जो रूत की पुस्तक से is हमने in सीखी, chapter 2 verse 2. वो दूसरा अध्याय दूसरे पद में है। मोआब बिन रूत ने नओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। Hallelujah. हालेलुया। You know, in English, it is used the glean ears of the corn. मतलब वहां पर बालियां को चुनना, जो जमीन पर गिरे होते हैं बालियां, उसे चुन You लेना। know, living in a season of gleaning. मतलब चुनने के मौसम में जीना। You know, it is a season of breakthrough. अब मानो रुकावट भेदन का एक मौसम है। And this breakthrough happens to those people, you know, who work hard under the providence of God. रुकावट उनके जिंदगियों में भेद की जाती है जो परमेश्वर के लिए मेहनत करते हैं। So what is gleaning? आखिर ये चुनना क्या होता In है? the Old Testament, gleaning has a very significant theological principle behind it. पुराने नियम के अंदर ये जो बालियों को चुनने का जो विषय है, उसके पीछे बहुत बड़ा परमेश्वर का You भेद know, है। gleaning happens at the time of harvest. जब फसल की कटाई होती है, पीछे पीछे लोग गेहूं की बालियों को चुनते हैं। It is basically the provision of God for poor people. ये परमेश्वर की ओर से एक प्रावधान था जो केवल गरीब लोगों के लिए It था। is a right that God has placed in the law for the poor people. परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था के अंदर गरीब लोगों के लिए ये प्रावधान लिख कर दिया था। According to the law of Moses, तो मूसा के नियम व्यवस्था के अनुसार a landowner who is harvesting, एक जमींदार जिसके जमीन के अंदर अभी कटाई हो रही he है, should not harvest the things that are on the borders of his land. उसे अनुमति नहीं है कि उसके जमीन की सीमा पर जितना फसल मतलब बालियां लगे हैं उसे काटे। They are not allowed to reap it, those things on the borders of their land. जमीन के सीमा पर जितना भी फसल है वो उसको वो छोड़ दे। Not only that, सिर्फ इतना नहीं, after the harvest, और कटाई के बाद you know, the reapers will carry the harvest to the land. मजदूर आकर जो फसल काट लिया उसे उठाकर ले जाएंगे कंधे And पर, sometimes this will fall down. और कई बार वो गेहूं के दाने, वो बालियां नीचे गिर And जाएंगे। the owner should not take what is fallen on the ground. परमेश्वर की ओर से आदेश ये था, जो गिर गया उसे दोबारा उठाना नहीं, वो गरीबों के लिए जाएगा। And the idea is, और उसके पीछे मकसद poor कारण ये people है who are around the place, क्योंकि उस स्थान में बहुत गरीब लोग they रहते can हैं, come and pick this. उनके लिए वो है, They can come and gather वो this. आकर वो सब चुनकर ले जा सकते। They can build their lives from the borders. बस ये जमीन की सीमा पर जो जितना फसल है उसे लेकर वो अपना पेट भरेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Ruth is going to the land of Boaz, the place of Boaz. और बोअज की जमीन पर ही रूत जाती है वो बालियों को चुनने की। She is in the season of gleaning. वो चुनने के मौसम में है She goes to the land. और उस जमीन पे जाती She है finds the harvest. और वहां पर वो नीचे बालियां उसे मिलता है She picks everything together. और वो सब कुछ वो इकट्ठा करती है And she is gathering a lot for herself. और सब कुछ अपने लिए चुनकर रखती है। Hallelujah. हालेलुया। Gleaning is for anyone who wants to take it and what is available as a leftover in the land. मतलब चुनना मतलब जमीन में जो रह गया, जिसे जमींदार ने उठाया नहीं, उसे आप चुन लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं। Those who go in circles लेकिन जो गोल गोल घूमते हैं will not see the harvest. उन्हें तो वो फसल दिखेगा भी नहीं, They cannot see what is left there. वो तो उन्हें दिखेगा भी नहीं कि क्या जमीन पर रह God गया है। always gives provision for people to go and pick up things for the building up of your life. जो अपनी जिंदगी को बनाने के लिए आगे जाकर चुनने के लिए तैयार हैं, उन्हें ही प्रभु मौका देता है। Hallelujah. हालेलुया। What is lying there? It is for you. वो जो वहाँ गिरा हुआ है वो आप ही के लिए है। It is for you to take and ये build your सिर्फ आप life. ही के लिए है कि आप उससे ले जाएं और अपनी जिंदगी बनाएं। I don't know what is left over there for you this morning. आपके लिए क्या परमेश्वर ने रख छोड़ा है उस जमीन में, मुझे नहीं मालूम, Come out of your circle. लेकिन आपको उस गोलाकार से निकल आना पड़ेगा Try to identify where the harvest और is. जहाँ जहाँ पर फसल है वहाँ पर आपको पहुँचना पड़ेगा Try to identify what the reapers have left. और क्या क्या आशीषें वहाँ छूट गई है उसे आपको लेना है। You know, take those blessings which are left somewhere in your life. It's time to come back and pick it up ये right now. बहुत सही समय है कि हम उस गोलाकार के चक्रव्यूह से बाहर निकल आएं और उस पके हुए खेत में जाएं जहां फसल की कटाई हो रही है और अपनी आशीषों को लेकर आ जाना है। Ruth came out of the roundabout into the field of Boaz so that God began to build her life. उस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर रूत बोअज के जमीन पर आ जाती है अपनी आशीष
आशीषों को चुन लेने के लिए। But finally, लेकिन आखिर में there is one more thing that we learn from the life of Ruth. रूथ के जिंदगी से एक और बात हम In सीखते हैं। chapter 3, it talks about the spreading. तीसरा अध्याय में फैला देना, इस बात को हम देखते हैं। Living under the covering of God. परमेश्वर के चादर के नीचे रहना, You know, that is the theme that is emerging in chapter 3. ये तीसरे अध्याय में ये बात आ रही है। You know, Ruth was trying to build her life from the gleaning, from the harvest leftovers. और चुनने की प्रक्रिया से रूथ ने अपनी जिंदगी की शुरुआत बेथलेहम में किया। But what is happening in chapter 3 is God is opening her a door. लेकिन पर तीसरे अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने रूथ के जिंदगी के लिए एक नया दरवाजा खोला। Hallelujah. हालेलुया। A new door. एक नया दरवाजा, A new door which she has never thought about. एक ऐसा दरवाजा जिसके बारे में रूथ ने कभी नहीं सोचा था। A door that which she could never imagine. एक ऐसा दरवाजा जिसको कल्पना तक नहीं कर A सकती वो। door which a Moabite widow in Bethlehem cannot imagine or think about. एक मोआबी श्रापित विधवा कभी भी बेथलेहम के अंदर अपने लिए ऐसा ख्वाब देख ही नहीं सकती। Because she was willing to trust in a God who made provisions for her life. क्योंकि उसने नवमी के परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना और उसके प्रावधान को अपनाया, इसलिए उसके लिए ये नया दरवाजा खुल गया। Hallelujah. Hallelujah. You know, an interesting thing that I read in chapter 3 is that, you know, when Ruth was sharing her testimony to the mother-in-law, अब देखिए तीसरे अध्याय में जो अच्छी बात मुझे लगी, जब रूथ अपनी गवाही को अपने सास के साथ बांट रही थी and Naomi was excited. और सासू माँ वो बहुत ही खुश हो गई And Naomi was prophetically speaking to her life. और नाओमी बहुत ही सोचकर प्रभु के आत्मा की अगुवाई से रूथ से कुछ And कहा। what is she saying? क्या कहा? Hey, tonight you should go to the Boaz's field. आज आपको रात को बोआज की जमीन में You जाना know, है there is a party there. और वहां पर एक पार्टी हो रही है, Everybody will eat. सब लोग खाना They will खाएंगे drink. और वो पिएंगे, And then they will sleep. फिर वो लोग सो जाएंगे। Then when the time for sleeping comes, जब रात को सब लोग गहरी नींद you में need to जाएं go to that Boaz's feet and put the cover over your head. और आपको बोआज के पैर के पास जाना है जहां वो सोया हुआ है और उसका आच्छादन अपने ऊपर डाल You देना know, है। we know that Naomi didn't see this. नाओमी ने तो ऐसा देखा भी नहीं You know, था। Naomi was prophetically speaking upon the life of Ruth. परमेश्वर पर विश्वास करके रूथ के जीवन पर उसने बोल दिया And Ruth was doing exactly the same thing on that same night. और उसी रात को वही रूथ ने किया जैसा उसने नाओमी के मुंह से सुना। Hallelujah. हालेलुया। You know, when you live under the wings, you can always speak God's truth upon the people who are near जब you. आप पंखों के साथ रहेंगे तो परमेश्वर की जो मनसा है वो आप लोगों को कह पाएंगे। You know, believers, you have great authority in the Lord. विश्वासियों, परमेश्वर में आपके पास बहुत बड़ी You अधिकार know, है। parents, you have authority in the Lord to speak over your children the greatest blessings in the Word of God. माता पिताओं, आपको दिया हुआ परमेश्वर का इतना बड़ा अधिकार है जिसके दम पर आप अपने बच्चों पर उत्तम से उत्तम भविष्यवाणियां कर सकते हैं। You know, husbands, you can speak over your wife about the great things that Yes. God has kept for your wife. पतियों, आप अपने जीवन में परमेश्वर के से पाए हुआ ऐसा अधिकार रखते हैं जिसके दम पर आप अपनी पत्नियों को उत्तम भविष्यवाणियां कर सकते हैं। You can speak that you will be like this, like this, like this, because I can see in the prophetic spirit. आप अपनी पवित्र आत्मा में देख रहे हैं परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं और आप उसे विश्वास से आप अपने सगे संबंधियों को कह सकते हैं। Those who are moving under the wings can speak that into the life जो of people. परमेश्वर के उस पंखों के नीचे चलते हैं वही ऐसा कह सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Look at the story of Ruth. आप रूथ की कहानी को ही देखिए। She became the great grandmother of Jesus वो Christ. परदादी बनी यीशु मसीह की। हालेलुया। Hallelujah. In the book of Judges, there were many tribes that were working and going around in circles. देखिए न्यायों की पुस्तक में कितने ही ऐसी जातियां जो परमेश्वर के लोग थे गोल गोल ही घूम रहे थे।
But in the book of Ruth, there is only one tribe, that is the tribe of Judah, because of its faithfulness before God, has allowed them to come out of the circle and to move and put it on a linear scale. लेकिन रूथ के पुस्तक में सिर्फ एक ही जाति है, वो है यहूदा की जाति, जिसके वजह से रूथ को सीधा आगे बढ़ने का एक रास्ता मिला। And David came out of Judah's tribe. और उस यहूदा के गोत्र में आगे जाकर दाऊद जन्म Jesus लेता is known as the Lion of Judah. और उसी यहूदा गोत्र में से निकला हुआ यीशु मसीह भी यहूदा का सिंह कहलाता है। Hallelujah. आमीन। How is your story of life? आपकी जिंदगी की कहानी कैसी है? Is your story is like a circle? आपका इतिहास गोल गोल घूम रहा है, Or is your circle, is your history is towards a progressive या nature? फिर आपकी अपनी इतिहास एक रूथ के समान आगे बढ़ रहा है? This morning, God wants to place that opening before you. एक दरवाजा परमेश्वर आज हमारे सामने खोलना चाहता है। There is an open door before you. हमारे सामने एक खुला दरवाजा Will है। you respond to God this morning? अगर आप प्रभु के सामने आज प्रार्थना करेंगे तो You know, this morning I just want to spend some time in prayer with you, आपके साथ कुछ समय मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, because God wants to take you out of your circles, क्योंकि प्रभु आपको गोल गोल घूमता हुआ नहीं देख सकता, but rather take you under His wings and to go climb and to move up and to new places where you have never seen मानो before. परमेश्वर आपको अपना पंख दे देना चाहता है कि उड़ो और जहां मर्जी नए नए जगहों पर उड़ जाओ। Will you be that person this क्या वो morning? व्यक्ति आप बनना चाहेंगे? You know, what is your history? You start writing your history. आप अपना इतिहास आज ही लिखना शुरू कीजिए। Hallelujah. Let's write a new history this morning in God. और क्यों ना परमेश्वर में हम अपने नए इतिहास की शुरुआत करें। You know, shall we all rise upon our अपने feet? स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। As